Morning, students. Okay, I am going to welcome you once again. And students, today we are going to start very important chapter of class 12th. And this chapter is molecular basis of inheritance. Okay, students, initially I want to discuss one thing along with you, that what is the meaning of molecular basis of inheritance. Okay, actually we know that the concept or the phenomenon of passing of characters from parents to their offspring, it is called inheritance. ठीक है. And Mendel explained a lot about the inheritance, and he told us that there are some factors which are carrying characters or which are passing the genetic information from parents to their offspring. Now the biggest question is that it was also asked at the same time कि what is the basis of inheritance? Actually, what are genes? Okay, what is the thing which is carrying genetic information from one generation to another generation? If I will ask you, so definitely, as you all know that you will answer that, sir, DNA is the thing, or the chromosome is the thing, or the gene is the thing which is passing characters from generation to generation. Now, today I want to discuss what is the molecular basis of these factors or these genes or these DNA actually. ठीक है. एक्चुअली व्हाट इज़ द मॉलिकुलर बेसिस? मॉलिकुलर बेसिस का मतलब है कि किस चीज़ के बने हुए हैं. मॉलिकुलर बेसिस पे ये किस चीज़ के बने हुए हैं. ठीक है. कौन कौन चीज़ें जुड़ करके इसको इनकी फॉर्मेशन कर रही हैं, जीन्स की फॉर्मेशन कर रही हैं, डीएनए की फॉर्मेशन कर रही हैं, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे लेकर के जा रहा है. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द मॉलिकुलर बेसिस. मीन्स व्हाट आर मॉलिकुलर लेवल पे क्या क्या चीज़ें जुड़ रही हैं और वो बेसिस तैयार कर रही हैं जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है. इज इट क्लियर? इफ टुडे आई विल आस्क, तो आप बोलेंगे सर देर आर न्यूक्लिक एसिड्स विच आर पासिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. सो हेयर to in today's class I am giving you basic concept according related to the these nucleic acids. So I am coming to the next slide. Now here I am going to give introduction about the genetic material. Now name the two type of nucleic acid which are found in the living organism. It's an obvious question, very simple question. ठीक है. What are two nucleic acids which occur in this universe in all living organisms? So definitely you will answer, sir, there are only two types of nucleic acids, and these nucleic acids are either DNA or RNA. What is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid is the DNA, and while RNA means ribonucleic acid. Clear? Now what act as a genetic material in most of the living organism? Next question. ठीक है. So definitely you will answer, sir, that sir, DNA is the nucleic acid which is which forms the basis of the passing of character in most of the generally genes are the basis, but genes are the part of the DNA actually. Later on we will discuss in detail. तो आप बोलेंगे व्हाट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपका आंसर होगा डीएनए, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है. एंड इट हेल्प्स इन द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. सिमिलरली if question comes in viruses, what acts like a genetic material, DNA or RNA, तो definitely you will answer that in case of the viruses both are not possible. यानी कि DNA और RNA दोनों के दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते viruses में. ठीक है. Some in some viruses DNA is the genetic material while in some cases RNA is the genetic material. तो कहने का मतलब ये है कि अब क्वेश्चन कम्स इन वायरसेस व्हाट एक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल अदर देन द डीएनए. यानी अगर डीएनए नहीं है तब जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करेगा? तो इन सच केस आरएनए. तो आरएनए एक प्रोसेस होती है, इसमें बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड ड्यूरिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए सिंथेसाइजेज डीएनए एंड दिस डीएनए पार्टिसिपेट्स इन द फर्दर एक्टिविटीज़ और पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है. नाउ since we know that DNA is the most important genetic material, and along with it RNA is also a kind of genetic material. So what are the another functions of RNA? क्या RNA genetic information को carry करने के साथ कुछ और काम भी करता है? Definitely. RNA is a messenger. As you know that there are three types of RNA: mRNA, tRNA and rRNA. तो messenger RNA यानी whatever the message is going to be passed, it always carried by आरएनए एमआरएनए. ठीक है. इसके अलावा एक कैटालिटिक मॉलिक्यूल है. कैटालिटिक मॉलिक्यूल मतलब एज ए कैटलिस्ट काम करता है, रिएक्शन के रेट्स को कम या ज़्यादा करने का काम भी करता है. ठीक है. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लिक एसिड्स.
ठीक है. व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? यू नो वेरी वेल दैट in the 11th class in chapter biomolecule you studied about two types of molecule. ठीक है, macromolecule and micromolecules. ठीक है, you know very well that what are macromolecules and what are micromolecules. On the basis of their molecular mass we classified the molecules the all the molecules into two category. ठीक है, one were present in the acid soluble fraction and the another one was present in the acid insoluble fraction or an acid insoluble pool. So here we are talking about the nucleic acid. ठीक है, they are heavier, they are having heavier mass or weight comparatively to the micromolecules. ठीक है, and these are present in all living cells. तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं एक तरह के मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, 800 डाल्टन से ऊपर का इनका मास होता है. ठीक है, और ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है. एंड this question comes in the board examination as well as in most of the competitive examination. Who was the scientist name the scientist who discovered the first nucleic acid? ठीक है, तो फ्रेडरिक मिशर was the scientist बेटा. he was the first person who isolated the nucleic acids from the pus cells. तो आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे इनका नाम था फ्रेडरिक मिशर, और इन्होंने सबसे पहले किसको आइसोलेट किया? न्यूक्लिक एसिड्स को. कहाँ से आइसोलेट किया? पस सेल्स में. यू नो, आई थिंक यू नो व्हाट इज पस. तो पस जो होता है जनरली, पस जनरेशन जो होती है, तो पस सेल से सबसे पहले इन्होंने इसको आइसोलेट किया और इसको जो नेम दिया इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया. क्या नाम दिया? न्यूक्लिन. देन उसके बाद जो अल्टमान नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे. नाउ आफ्टर सम टाइम अल्टमान वाज देयर एंड ही फाउंड दैट ही डिस्कवर्ड दैट इट इज़ एसिडिक इन नेचर. बेसिक डीएनए और आरएनए इज एसिडिक इन नेचर. तो उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिक एसिड्स नाम दे दिया. तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने, ये एग्जाम अक्सर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेडरिक मिशर इन केस ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो आप देंगे फ्रेडरिक मिशर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट. ठीक है, और फर्स्ट मैन और फर्स्ट पर्सन हु आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड्स फ्रॉम द पस सेल. देन अल्टमान later on discovered that these nucleins are basically acidic in nature, so he gave the term nucleic acids to them. And right now we know that there are two types of nucleic acids: deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA. ठीक है, now tomorrow we will discuss the structure and function of the nucleic acids. ठीक है, basically we will start initially the structure of the DNA. So before it I want to give some idea related to the DNA. Genetic material, the DNA is a genetic material which is present in the most of the living organisms. ठीक है, and it carries the coded information from one generation to another generation. तो एक्चुअली डीएनए है क्या? डीएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है जो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक हमेशा कैरी करने का काम करता है. इन यूकैरियोटिक सेल्स डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस इन चीफ कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम. एज वी नो दैट, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होगा. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे और इस क्रोमोसोम में क्या होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा. ठीक है, and DNA also found in the mitochondria and chloroplast. Since we studied in the previous class कि आपने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी बोलते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, अपना डीएनए इनके पास होता है. तो डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो गया? एक तो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट हो गया, और यूकैरियोटिक सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ भी प्रेजेंट होगा. ठीक है, एंड what is DNA basically? I will discuss it later on in the next video. But right now I am going to tell you that it's a long polymer of deoxyribonucleotides. तो यानी कि कई तरह के न्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है डीएनए, जिसमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके एक चेन सी बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो एक तरह का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड टाइप के पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब कौन सा वाला न्यूक्लियोटाइड है इसमें? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तो हो सकता है ना, राइबोन्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है. तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कई तरह के आपस में ऐड हो के एक लंबी चेन बना लेते हैं, उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और पेयर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स. अच्छा, हम कहते हैं कि डीएनए की लेंथ कितनी है. तो एक्चुअली जो डीएनए की लेंथ है इसको मेज़र करने के लिए हम नंबर ऑफ बेस पेयर, जो क्योंकि डीएनए क्या एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है, डीएनए इज अ काइंड ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. तो इसमें जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, जो बेस पेयर्स को हम काउंट कर लेते हैं. ठीक है, यानी अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो लेंथ ऑफ द डीएनए, नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स
और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पेयरिंग होती है, उस पेयरिंग को काउंट कर लेते हैं कितने टोटल बेस पेयरिंग इसमें हो रही है। तो और एक बेस पेयर के बीच की जो तो हम क्या कर लेते हैं, कितने टोटल इसमें बेस पेयर है, तो उस बेस पेयर के हिसाब से हम इसकी लेंथ को क्या कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि कैसे हम इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एग्जांपल के तौर पे देयर का एक वायरस है, इसमें बैक्टीरियोफेज 5, ठीक है, 174। इसके पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो है 5386। तो यानी कि बैक्टीरियोफेज 5174 एक बैक्टीरियोफेज टाइप का एक वायरस है, इसके पास नंबर ऑफ बेस पेयर है 5386। वहीं बैक्टीरियोफेज लैम्डा 48502 बेस पेयर्स इसके पास होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो दूसरा आप तरह का वायरस है, इसके पास नंबर ऑफ बेस पेयर थोड़ा सा डिफरेंट है, 48502, यानी कि 48502 बेस पेयर्स इसके पास होते हैं। वहीं ह्यूमन जीनोम अगर आप देखें, ह्यूमन के पास 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड सेल में अगर आप देखेंगे तो इसके पास 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। ना अभी क्या बेस पेयरिंग है, ना व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स, व्हाट आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, आई थिंक यू मस्ट हैव वेरियस क्वेश्चंस इन योर ब्रेन। ठीक है, सो टुमारो वेन एवर आई विल कम, I will discuss the structure of the DNA. I will tell you that what are these nucleotides and how these are synthesized, and how their chain forms, and how the DNA structure of the DNA occurs. ठीक है, so till tomorrow, so for today it's enough I think, and wait till tomorrow, and till then bye bye and thank you.